ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے. میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے. مجرموں چشمے تبسم رکھو, مجرموں چشمے تبسم رکھو, پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. علامہ مولانا علی رضا رہبر کٹیہاری, جن کی اناؤنسری اس وقت 786 کی اسپیڈ میں پورے ہندوستان میں بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان کے نمبر 1 اناؤنسروں میں حضرت علی رضا رہبر کا بھی نام آ جائے. حضرت علامہ اشتیاق ضیاء شہباز بھاگلپوری فرماتے ہیں, نہ میں مدینے میں اجنبی ہوں نہ کوئے سرکار اجنبی ہے, نہ میں مدینے میں اجنبی ہوں نہ کوئے سرکار اجنبی ہے. قسم ہے اے نسبت غلامی جو خاک مجھ میں رچی بسی ہے. میرے عمل مجھ سے کہہ رہے ہیں تو دوزخی ہے, تو دوزخی ہے. میرے عمل مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تو دوزخی ہے, تو دوزخی ہے. مگر یہ کہتی ہے محمد کی نسبت تو جنتی ہے, تو جنتی ہے. نہ چھیڑ تکرار ایمان نہ تھام نجدی میرا گریبا, تیرا وظیفہ خدا خدا ہے میرا وظیفہ نبی نبی ہے. تیرا وظیفہ خدا خدا ہے میرا وظیفہ نبی نبی ہے. نقیب صاحب اشعار سنیں, جن اشعار کو میں حصول برکت کے لیے آج کل کے تمام تر جلسوں میں پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں, تاکہ اس سے حضور کے فضائل و مناقب کا پتہ چل سکے. شاعر کہتا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں, دو جہاں میں نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی, جس کو واللیل قرآن میں رب نے کہا زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی. ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی, سب کا آقا و مولا ہمارا نبی. پتھرو جھٹ سے ہے کلمہ پڑھنا تمہیں, پتھرو جھٹ سے ہے کلمہ پڑھنا تمہیں, جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی, پایا حسنین و زہرا ہمارا نبی. اب نبی نہ قیامت تلک آئے گا, آخری ہے تمہارا ہمارا نبی. ختم کر کے لڑائی شب و روز کی, صبح صادق میں آیا ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی. آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی, تاروں کے لیے پیاری پیاری پرزیب ہوا میں نبی نبی. کون نبی؟ دارین نبی کے صدقے میں, سبتین نبی کے صدقے میں, ثقلین نبی کے صدقے میں, شبیر نبی کے صدقے میں, تنویر نبی کے صدقے میں, توقیر نبی کے صدقے میں, ہر پیر نبی کے صدقے میں, عزت بھی نبی کے صدقے میں, عزت بھی نبی کے صدقے میں, دولت بھی نبی کے صدقے میں, شہرت بھی نبی کے صدقے میں, حشمت بھی نبی کے صدقے میں, جنت بھی نبی کے صدقے میں, علماء بھی نبی کے صدقے میں, شورا بھی نبی کے صدقے میں. ہے دہر میں روئے حیات نبی, پروانہ پل صراط نبی, کلیوں کی چٹک میں نبی نبی, ڈالی کی لچک میں نبی نبی, پھولوں کی مہک میں نبی نبی, پھولوں کی مہک میں نبی نبی. نور بھی نبی, انور بھی نبی, حاضر بھی نبی, ناظر بھی نبی, حسنین کا نانا نبی نبی, حسنین کا نانا نبی نبی, زہرا کا بابا نبی نبی, زہرا کا بابا نبی نبی, ہے کعبے کا کعبہ نبی نبی, ہے ابر کرم بھی نبی نبی, ہے رحمان کی ہے سوغات نبی, بن بادل کے برسات نبی, بھٹکو تو کنارا نبی نبی, ڈوبو تو سہارا نبی نبی, میری آنکھ کا تارا نبی نبی, ہادی جو رہبر نبی نبی, ہم سب کا پیمبر نبی نبی, ساقی کوثر نبی نبی. سرکار کی شان میں اور بھلا شاعر کا قلم لکھے بھی تو کیا, سرکار کی شان میں اور بھلا شاعر کا قلم لکھے بھی تو کیا. خاتون جنت زہرا ہے اور زہرا کا بابا نبی نبی. تو قبر کے باہر جو بھی کر لے, تو قبر کے باہر جو بھی کر لے, ارے تیری قبر کے اندر نبی نبی, ایمان نبی, ایقان نبی, سلطان نبی, میری جان نبی, اور ہے جانے ایمان نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت مولانا مناظر حسین صاحب قبلہ چھپڑوی
ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी और है जाने ईमान नबी। हजरात आइए हम आपके ज़हन और फिक्र को करीब करते हैं, लेकिन आइए इससे पहले दुरूद पाक का नगमा गाते हैं और पढ़िए आवाज के साथ अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज पूरे हिंदुस्तान की जो हालत हमारे सामने है वो हमारे निगाहों से पोशीदा नहीं है। कभी तलाक पे हमला हो रहा है, कभी मुसलमानों की मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, कभी मुसलमानों को इस हिंदुस्तान से बाहर करने की बातें हो रही हैं। हज़रात इन सारे मामलात को अगर हम तय करते हैं तो बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि आज के इसी दौर में हमारा इसी यानी जो इंसान कुरान को मानता है, जो इंसान कल तक कुरान का खुतबा पढ़ रहा था, वही नालायक जिसके पैदाइश में गलती, वसीम रज़वी जिसने कुछ ही दिन पहले ऐसा बयान दे दिया कि कुरान के 26 आयत को मिटा दिया जाए इसलिए कि कुरान की इन आयतों के जरिए आतंकवाद का बढ़ाव हो रहा है। अब रात में कहना चाहता हूँ कैसे कमजोर हम मुसलमान हो गए आज के डेट में कि पूरी दुनिया में ये खबर फैल चुकी है कि वसीम रज़वी की तरफ से ये ऐलान हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है कि कुरान के 26 आयत को निकाल दिया जाए। लेकिन वाह रे मुसलमान, हम मुस्तफा जाने रहमत के तज़किरे रोज सुनते हैं, मुस्तफा जाने रहमत के नाम के महफिलें हर रोज मुनक़िद करते हैं। ये बड़े खुश नसीब की बात है कि हम मुस्तफा जाने रहमत की महफिलें मुनक़िद करते हैं। ऐ लोगों, इसी नबी के जिक्र की बरकत है कि आज आसमान सलामत है, इसी नबी के जिक्र की बरकत है कि आज फर्श का सामियाना सलामत है, इसी नबी के जिक्र की बरकत है कि आज हमारे आंखों में रोशनाइयां मौजूद है, इसी नबी के जिक्र की बरकत है कि आज इंसान हजरत इंसान बन गया है। वरना यकीन जान लीजिए जब तक मुस्तफा प्यारे इस दुनिया में नहीं आए थे, कोई इंसान जब पहाड़ के चट्टानों को देखता था तो वो ये कहता था कि पहाड़ की चट्टान की बुलंदी इस कदर है, मुमकिन है कि यही खुदा है, उसी के सामने अपने सर को झुका देता था और उसी की इबादत करने लगता था। ऐ लोगों, जब कोई इंसान सूरज की रोशनी को देखता था तो वो ये कहता था कि सूरज है एक छोटा सा सूरज जो पूरी दुनिया को मुनव्वर कर देता है, पूरी दुनिया में यानी रोशनाइयां बिखेर देते हैं। ऐ लोगों, कुछ लोग सूरज के पावर को देख करके सूरज को ही खुदा मान रखा था। कुछ लोग जब चांद की चांदनी को देखा था तो लोगों ने ये कहा था कि चांद इस कदर अपने जलवे दिखा रहे हैं, मुमकिन है कि यही चांद मेरा खालिक है, यही चांद मेरा खुदा है। कुछ लोग उसी चांद के सामने अपने सर को सजदे में टेक दिए थे। लेकिन हजारों रहमतें कुर्बान हो ए आमना के लाल तेरे तुरबत पर, हजारों रहमतें कुर्बान हो ए मुस्तफा जाने रहमत तेरे मरकज़े अनवर पर। कि जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत आ गए और जब मेरे मुस्तफा ने ये देखा कि लोग इस कदर बदतर हालात में गिर चुके हैं कि कोई इंसान सूरज को खुदा कह रहा है, लोग इस कदर गिर चुके हैं कि कोई इंसान चांद को खुदा कह रहा है। ऐ लोगों, मेरे मुस्तफा ने आने के बाद ये ऐलान किया था कि ऐ लोगों, तुम क्या समझते हो, चांद को तुम क्यों खुदा मानते हो? चांद तुमसे बड़ा नहीं है बल्कि तुम चांद से बड़े हो। लोगों ने ये कहा था या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि हम चांद से बड़े हैं, ये कैसे हो सकता है कि मेरा रुतबा चांद से बड़ा है। तब गुस्सा आया था मुस्तफा जाने रहमत को, तब गुस्सा आया था मदीने वाले को। ऐ लोगों, जैसे ही लोगों ने ये सवाल किया था कि ऐ मुस्तफा, ये कैसे हो सकता है कि हमारे रुतबे चांद से बड़े हैं, ये कैसे हो सकता है कि हम चांद से बड़े हैं, तब मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने इसी उंगली के जरिए डूबे हुए सूरज को अपने उंगली के जरिए हजरत अली के नमाज़े असर के लिए डूबे हुए सूरज को फिर से पलटा दिया था। दुनिया बैक जबान होकर के बोली थी, जमाने के लोग पुकार करके कह रहे थे कि मान गए सूरज छोटा बन करके तशरीफ लाया है, लेकिन आमना का चांद बड़ा बन करके तशरीफ लाया है। ऐ लोगों, कुछ लोग चांद के सामने अपने सर को झुका रहे थे, कुछ लोग चांद की इबादत कर रहे थे। मुस्तफा ने ये कहा है कि ऐ लोगों, तुम लोग ये गलत कर रहे हो, चांद तेरा खुदा नहीं है, तुम चांद से बड़े हो, चांद तुझसे बड़ा नहीं है। लोगों ने ये कहा था या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि हम चांद से बड़े हैं। तब गुस्सा आया था मुस्तफा जाने रहमत को, तब मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने इसी उंगली के जरिए इसी उंगली के जरिए चांद का सीना चीर करके एक चांद को दो टुकड़े में तब्दील कर दिया था। दुनिया के लोग जब मुस्तफा के इस मौजज़ा को देखे थे तो दुनिया के लोग ये पुकार करके कह रहे थे कि मान गए हम लोग कल तक
मुस्तफा के सदके में है। ऐ लोगों, इस चांद को मेरे रब ने मुस्तफा के सदके बनाया है, इस सूरज को मेरे मुस्तफा के सदके बनाया है। दुनिया बोली थी, मान गए, चांद छोटा बन करके तशरीफ लाया है। मुस्तफा जाने रहमत ऐसे चांद हैं जो आसमान के चांद से भी बड़े बन करके तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसर के आला हजरत मौलाना मुनाजिर हुसैन साहब किबला मान गए कि आमना का चांद बड़ा होकर के तशरीफ लाया है। ऐ लोगों, जब तक मुस्तफा नहीं आए थे ये इंसान जानवरों के फेरिस्त में खड़ा था। मुस्तफा के आने के बाद ये इंसान जानवरों के सफों से निकल करके इंसानियत के सफ में आकर के खड़ा हो गया है। लेकिन आज इंसानों के दिलों में ईमान की शुआएं तो हम होने का दावा करते हैं, लेकिन कभी अगर हमारे दिन पे हमले हो रहे हैं, तलाक पे हमला होता है, हम खामोश रहते हैं। सिर्फ जलसे में आकर के कहते हैं हमने 500 का चंदा दे दिया, फिर हमारे ऊपर से मुसलमान होने की जिम्मेदारी खत्म। ऐ लोगों, कभी हमारे सामने क्या क्या बिल पास हो जाता है। अभी देखिए कुरान शरीफ का ये मामला, जिस कुरान शरीफ की अजमत को हम और आप अपनी जान से भी ज्यादा समझते हैं। ऐ लोगों, जबकि पूरी दुनिया के मुसलमानों का ये ईमान होना चाहिए कि जिस कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया है, उस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे रब ने लिया है। और मेरे रब के पास इतना बड़ा पावर है, चाहे कभी वसीम रजी बोले, चाहे वक्त का कोई फिर और बोले, चाहे वक्त का कोई नमरूद बोले, लेकिन आपको पता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के बहुत बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, साहिबे किताब रसूल हैं। हजरत मूसा अल्लाह के नबी है, अल्लाह के पैगंबर हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, साहिबे किताब रसूल हैं। एक मर्तबा की बात है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक कुर्सी में बैठे हुए थे और अपने हाथ में एक बोतल को पकड़ करके बैठे हुए थे। अचानक हजरत मूसा रब से बातें करने लगते हैं, रब से फरियाद करने लगते हैं। हजरत मूसा फरमाते हैं अल्लाहुम्मा मता याखुज़ुक अन्नौम, ऐ अल्लाह तुझे नींद कब आती है, ऐ अल्लाह तू सोता कब है। ये सवाल कौन कर रहा है? हजरत मूसा कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? हजरत किससे कर रहे हैं? उससे कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपके ज़हन और दिमाग में फिर से अकीदे अहले सुन्नत को क्लियर कर दूं कि मेरा अल्लाह सोने से पाक है, मेरा अल्लाह कभी सोता नहीं है, मेरा अल्लाह कभी खाता नहीं है, मेरा अल्लाह कभी चलता नहीं है, मेरे अल्लाह के हाथ नहीं है, मेरे अल्लाह के पैर नहीं है। हजरत पूछने वाला अगर कोई ऐरे गैरे नथु खैरे होता तो उसको उसकी औकात बता दी जाती, दलाइलो बराहीन से उसके मफूजे के लाल किले के एक एक ईंट को तोड़ करके रख देते, मगर पूछने वाला कोई और नहीं है बल्कि अल्लाह के बहुत बड़े पैगंबर हैं, साहिबे किताब रसूल हैं, अल्लाह के बहुत बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। और अल्लाह से सवाल करते हैं, कुर्सी में बैठे हुए हैं, अपने हाथ में एक बोतल को पकड़ करके बैठे हुए हैं। ऐ लोगों, हजरत मूसा सवाल करते हैं अल्लाहुम्मा मता याखुज़ुक अन्नौम, ऐ अल्लाह तुझे नींद कब आती है, ऐ अल्लाह तू सोता कब है। हजरत जैसे ही हजरत मूसा ये सवाल करते हैं, थोड़ी ही देर के बाद ठंड हवा चलती है, सर्द हवा चलती है, नींद आवर हवा चलती है। जैसे ही हवा चलती है, हजरत मूसा की आंख बंद हो जाती है। जैसे ही हजरत मूसा की आंख बंद हो जाती है, नींद की कैफियत तारी हो जाती है, नींद का गलबा आने लगता है। ऐ लोगों, हजरत मूसा जो कुर्सी में अपने हाथ में एक बोतल को पकड़ करके बैठे हुए थे, जैसे ही हजरत मूसा की आंख बंद होती है, बोतल हाथ से छूट जाती है, छूटने के बाद जमीन पे गिरती है, गिरने के बाद बोतल टूट जाती है। ऐ लोगों, हजरत मूसा बोतल की आवाज को सुन करके नींद से बेदार होते हैं और अपने रब से बातें करते हैं। ऐ मेरे मौला, तेरे मूसा पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया है। कब्जा मूसा का है, ताकत मूसा की है, हाथ मूसा का है, पकड़ मूसा की है, पंजा मूसा का है। ऐ मेरे मौला, मूसा का हाथ है, मूसा की पकड़ है, मूसा की ताकत है, लेकिन मूसा की सिर्फ एक आंख बंद हो गई। तो एक आंख बंद होने की वजह से एक तेरा बंदा मूसा एक बोतल को न संभाल सका। मौला, अगर तू सो जाएगा तो इस दुनिया को कौन संभालेगा? अगर तू सो जाएगा तो इस जमीन को कौन संभालेगा? अगर तू सो जाएगा तो समंदर के पानी को कौन संभालेगा? अगर तू सो जाएगा, जो आसमान बगैर खूंटे और खंबे के मेरे रब ने इस आसमान को फर्श की सूरत में हमारे दरमियान महफूज किया है। मौला, अगर तू सो जाएगा तो इतने बड़े आसमान को कौन संभालेगा? अगर तू सो जाएगा
अगर तू सो जाएगा तो दरिया के मछलियों को कौन संभालेगा। ऐ लोगों, हजरत मूसा ने ये कहा, मौला मेरी आंख बंद हो गई, और बंद होने के बाद बोतल हाथ से छूटी, छूटने के बाद बोतल गिर करके टूट गई, और मूसा के आंख बंद होने की वजह से मूसा एक बोतल को न संभाल सका। मौला जवाब मिल गया कि तू कभी सोता नहीं है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। अरे वही खुदा है, वही खुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। हज़रात, मेरे बाद एक अच्छे खतीब हजरत मौलाना नैयत आलम साहब का खिताब होना है। मैं आपके दिलो दिमाग को यानी करीब करके आपसे ये बताना चाहता हूँ, आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे रब के पास बड़ा पावर है। रब जब पकड़ने पे आता है, एक बात याद कर लीजिए हज़रात, रब पहले किसी को लंबी छूट देता है, और लंबी छूट देने के बाद जब मेरा रब किसी को पकड़ने पे आता है हज़रात, वो फिर जिसको अपनी बादशाहत पे घमंड और नाज था हज़रात, लेकिन अल्लाह ताला उसी फिरऔन को पहले लंबी छूट देता है, लेकिन रब जब पकड़ने पे आता है तो उसी फिरऔन को दरिया में डुबा डुबा करके मारना भी जानता है। अगर कोई अल्लाह ताला किसी कारून को पूरी दुनिया की दौलत देना जानता है, फिर वही कारून अगर अपने दौलत के घमंड में आकर के एक अल्लाह के बड़े पैगंबर हजरत मूसा पर अपना तोहमत लगा करके हजरत मूसा को बदनाम करना जानता है, फिर मेरा रब जब पकड़ने पे आता है तो उसी कारून को सारी दौलतों के साथ इसी जमीन के नीचे धसा धसा करके मारना भी जानता है। हज़रात, वो नमरूद जो बहुत बड़ा हाकिम था, लेकिन अल्लाह ताला उसी नमरूद के भेजे के अंदर एक मामूली मच्छर दाखिल करके उसी नमरूद को तरफा तरफा करके मारना भी जानता है। तो आप याद कर लीजिए हज़रात, आज हर मुसलमान का ये जज्बा होना चाहिए कि उस वसीम रज़वी नालायक का ये बयान आ गया कि कुरान की 26 आयत को मिटा दिया जाए, कुरान की 26 आयत को हटा दिया जाए। ऐ लोगों, हम मुसलमानों का जज्बा ये होना चाहिए कि कुरान की 26 आयत तो दूर की बात है, बल्कि उन आयतों में से एक नुक्ता भी नहीं हट सकता है। और हम वसीम रज़वी को इस सोशल लाइफ के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उस तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, और हुकूमत तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ए हुकूमत, कान खोल करके सुन लीजिए, ये तेरे बाप का कानून था, तूने नोट छपाया था, फिर जैसे ही तुमको समझ में आया तूने उस नोट को तब्दील कर दिया। ये तेरे बाप का कानून था कि तूने नोट खुद छपाया था, फिर उस नोट को तूने खुद तब्दील कर दिया। ये तेरे बाप, कश्मीर का कानून तेरे बाप का कानून था, तुमने जब चाहा उसको लेकर के आया, और जब चाहा तूने उसको हटा दिया। यानी ये तुम्हारे बाप का कानून था, जब तू चाहता है लेके आता है, जब तू चाहता है उसको हटा देता है। लेकिन कुरान का कलाम ये अल्लाह का कानून है, और अल्लाह के कानून में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा सकती है। अल्लाह का कानून ये तेरे बाप का कानून नहीं है, बल्कि उसका कानून है जिसने जमीन बनाई है, उसका कानून है जिसने आसमान बनाया है। ऐ लोगों, हम मुसलमानों का जज्बा ये होना चाहिए कि अगर तुम कुरान के अजमत पे अपनी उंगली उठाना चाहोगे, अगर तुम कुरान को ललकारना चाहोगे, तो हम मुसलमानों का जज्बा ये होना चाहिए कि ऐ लोगों, हम ये ऐलान करने के लिए आ जाए, हम रोड पे आ जाए, हम सड़क पे आ जाए, हम सोशल लाइफ पे आ जाए, हम सोशल मीडिया में आ जाए, और हम ये ऐलान करें कि अगर तुम कुरान की अजमत पे उंगली उठाना चाहते हो तो मुसलमान की एक जान नहीं, दो जान नहीं, बल्कि मुसलमान अपने बच्चों की जाने कुर्बान को कर सकते हैं। तुम चाहे अखलाक को मारो, हम सब्र कर लेंगे, तुम चाहे पहलू खान को मारो, हम सब्र कर लेंगे, तुम चाहे तबरेज अंसारी को मारो, हम सब्र कर लेंगे, लेकिन अगर तुम कुरान को मिटाना चाहोगे, अगर तुम कुरान की अजमत पे अपनी उंगली उठाओगे, तो तुम हमारे बच्चों को मार करके मौत की नींद सुना दो, हम सब्र कर लेंगे। तुम हमारे खाने पे पाबंदी लगा दो, हम सब्र कर लेंगे। तुम हमारे पोशाक पे पाबंदी लगा लो, हम सब्र कर लेंगे। लेकिन कसम खुदा की, अगर तुम हमारे कुरान की अजमत पे उंगली उठाना चाहोगे तो हम अपने बच्चे को कुर्बान तो कर देंगे, लेकिन कुरान की अजमत में एक जर्रा बराबर फर्क नहीं आने देंगे। और पूरी दुनिया बबांगे दुहल हम ये ऐलान करेंगे कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा।
चोरी का कोई नौजवान है? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। कुरान की अजमत पे तो सारे लोगों को खड़े हो जाना चाहिए। कुरान के अजमत के लिए, कुरान के तहफ्फुज़ के लिए सब लोग खड़े हो जाना चाहिए। वसीम रज़वी को हम अपनी औकात बताना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के अंदर अगर जज्बा आ जाए तो ए वसीम रज़वी, तू कुरान की 26 आयत को मिटाना चाहता है। अरे कुरान की 26 आयत तो दूर की बात है, अगर वक्त आएगा तो वसीम रज़वी को हम मिटा देंगे। सीमांचल के लोगों ये जिंदा दिल मुसलमान है। मैं नारा लगाता हूं, आप लोगों को मुर्दाबाद कहना है। वसीम रज़वी वसीम रज़वी वसीम रज़वी जिंदाबाद। सब लोग खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद बिल्कुल करीब आकर के बैठ जाएं और जज्बे के साथ बैठे और मैं कराम जो अपने बयानात को आप तक पहुंचाना चाहे आप उसको कैच करने की कोशिश कीजिए और उन पैगामात पे अमल करने की कोशिश कीजिए। ऐ लोगों, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान में बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान में बदला जाएगा, क्योंकि कुरान पढ़ना हमें बरेली के इमाम ने सिखाया है। कैसे सिखाया है? कुरान का न कोई मुतबादिल बदल है, कुरान हर एक कोई दुश्वार का हल है, कुरान इबादत का मुहाफिज भी खबर भी, कुरान बसीरत भी बसारत भी बसर भी, कुरान तासुर भी मुअस्सर भी असर भी, कुरान में सिगरा भी समंदर भी हजर भी, मैसर की मिसालें जिन्हें सिदरा से कमर भी, कुरान की आयत में रातें भी है दिन भी, कुरान में इंसान भी है शयातीन भी जिन भी, कुरान में अज़ल से अबद तक की खबर है, कुरान में ही तज़किरे जिन्नो बशर है, कुरान वो मंबे करम जो अता है, कुरान वो मंबे करम जो अता है, कुरान तो हम सब के लिए फजले खुदा है, कुरान वो खजीना है असलो उसूल का, कुरान वो खजीना है असलो उसूल का, कुरान मोजेज़ा है फज़ाइले रसूल का। अरे कुरान को तुम कंजुल ईमान से समझो, कुरान को तुम कंजुल ईमान से समझो, कुरान को तो बरेली के रज़ा खान से समझो, कुरान को तुम नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत अज़मते कुरान जोर से बोलिए, जोर से अज़मते कुरान, शाने कुरान, अज़मते कुरान है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान में बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान में बदला जाएगा। कुरान को तुम कंजुल ईमान से समझो, कुरान को तो बरेली के रज़ा खान से समझो। ऐ लोगों, इश्क करो मेरे प्यारे आला हजरत जैसे कि आला हजरत तो शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए पूरी जिंदगी लड़ते रहे। वो मुजाहिदे मिल्लत जो उड़ीसा के शेर हैं, जिसके नाम के नारे हम हिंदुस्तान में लगाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया कि उड़ीसा के मुजाहिदे मिल्लत कभी बायसी में आए नहीं, कभी बायसी के दिगर इलाके में आए नहीं, लेकिन वजह क्या है कि वो उड़ीसा के रहने वाले हैं, लेकिन उनके नाम का नारा कभी चौकी बस्ती में लगता है, कभी बायसी में लगता है, मस्जिदों के मेहराब मिंबर से उनके नाम का नारा गूंजता है। उसकी वजह यह है कि मुजाहिदे मिल्लत जब तक दुनिया में रहे कुरान की अजमत पे यानी लोगों को दस देते रहे, जब तक दुनिया में रहे लोगों को मुस्तफा जाने रहमत की सीरत पेश करते रहे। यही वजह है कि जब मुजाहिदे मिल्लत शहर मदीना चले गए तो हजरत सरकार मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को पेश करने के बदौलत उनको सजा यह मिली कि लोगों ने हजरत मुजाहिदे मिल्लत के हाथों में हथकड़ियां लगा दी। 60 साल की उम्र है, बुढ़ापे का आलम है, जिस 60 साल की उम्र में आप और हम खड़े नहीं हो सकते हैं, उस 60 साल की उम्र में हजरत मुजाहिदे मिल्लत के हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई। हजरत मुजाहिदे मिल्लत है, हथकड़ी पहन करके धूप में खड़े हैं। किसी ने ये कहा, ए मुजाहिद क्या बात है, 60 साल की उम्र हो चुकी है, हथकड़ी पहन करके मदीने शरीफ के वादियों में खड़े हो। और मदीने शरीफ की जमीन वो कोई रेतीली जमीन नहीं थी, बल्कि पथरीली जमीन थी। लोगों ने ये कहा है, ए मुजाहिदे मिल्लत तेरे हाथ पे हथकड़ियां डाली गई है, लेकिन बात क्या है, मुस्कुरा रहे हो, दर्द नहीं है क्या, तकलीफ नहीं हो रही है, दर्द नहीं हो रहा है? तो मुजाहिदे मिल्लत ने ये कहा था कि दर्द भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है, लेकिन हम अपनी किस्मत पे इसलिए नाज करते हैं कि हमें हथकड़ी भी मिली है तो मुस्तफा के शहर की मिली है, हमें हथकड़ी भी मिली है तो मुस्तफा के नगर की मिली
रहती है। ऐ लोगों, फिर उसी रात में किसी आलिम बाअमल ने ये ख्वाब देखा था। क्या ख्वाब देखा था? कि मुस्तफा जाने रहमत हैं, दस्तरखान बिछा दिए हैं। उस दस्तरखान में औलिया भी आए हुए हैं, अंबिया भी आए हुए हैं, अगवास भी आए हुए हैं, अख्ताब भी आए हुए हैं, अंबिया भी जमा है, औलिया भी जमा है, नबी भी आए हुए हैं, वली भी आए हुए हैं। मुस्तफा दस्तरखान बिछाए हैं और मुस्तफा के दस्तरखान में नबी आए हैं, वली आए हैं। और हैरत की बात तो ये है कि वो आलिम बाअमल जब ये ख्वाब देखते हैं तो उनके भी दिल की दुनिया बदल जाती है कि ऐ लोगों, मुस्तफा के दस्तरखान में आने के बाद सारे अंबिया और औलिया, अगवास और अख्ताब आने के बाद अपने हाथों से खाना खा रहे थे, लेकिन मेरे मुजाहिदे मिल्लत को मेरे मुस्तफा जाने रहमत अपने हाथों से खाना खिला रहे थे, अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। उसका मतलब क्या निकलता, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि ऐ लोगों, मेरे मुजाहिदे मिल्लत ने मेरे मुस्तफा से प्यार किया है कि जब उनके मदीने शरीफ में जाने के बाद उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई, मुजाहिद ने ये कहा है कि हम बड़े खुश नसीब हैं कि हथकड़ियां भी पहनाई गई हैं तो मुस्तफा के नगर में पहनाई गई हैं, मुस्तफा के शहर में पहनाई गई हैं। लेकिन हम कैसे मुसलमान हैं जो मुस्तफा से आने रहमत से मोहब्बत के दावे तो करते हैं, लेकिन आज हमारे खून को तो बिल्कुल यानी गर्व होना चाहिए कि उस वसीम रज़वी नालायक कमीने कुत्ते की औकात क्या है कि वो कुरान की 26 आयत को मिटाने की बात करे। अरे जब तुझे उसको पता नहीं है कि जब मुसलमान बेदार होने पे आ जाते हैं तो मुसलमान ही ऐसे वो मुसलमान है, मुसलमान ही ऐसे वो कौम है कि ये मुसलमान अगर चाह ले तो दरिया के रास्ते को चीर करके अपना रास्ता निकालना जानते हैं। ये मुसलमान ही वही मुसलमान है कि इन्हीं मुसलमानों के सिपह सालार हजरत खालिद इब्ने वलीद है कि हजरत खालिद इब्ने वलीद जिस रास्ते से चल रहे थे तो लोग हजरत खालिद इब्ने वलीद को देख करके डर रहे थे कि मुस्तफा के अदना सिपाही का जब ये आलम है तो मेरे मुस्तफा का क्या आलम होगा। जब हजरत खालिद इब्ने वलीद का बाकी बात जब आ गई तो मैं एक वाकया आपके सामने पहुंचाना चाहता हूं, फिर अपनी तकरीर को इन्हीं चंद बातों के साथ समेटना चाहता हूं कि आज हम खोखले मुसलमान हो चुके हैं, सिर्फ नाराबाजी करने वाले मुसलमान हो चुके हैं। लेकिन याद कीजिए, आज से कितने 1200 साल पहले की बात है। हजरत खालिद इब्ने वलीद हैं, एक रिवायत में ये मिलती है कि हजरत यहूदी हजरत, ईसाई हजरत ये मीटिंग करते हैं कि कैसे मुसलमानों के बढ़ावे तादाद को रोका जाए। मुसलमान बड़ी तेजी के साथ, जरा गौर से सुनिएगा इस बात को, मेरा अंदाजे बयां बहुत शौक नहीं है, मेरा अंदाजे बयां बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ऐ लोगों, हजरत खालिद इब्ने वलीद हैं, हजरत यहूदी हजरत मीटिंग किए हैं, ईसाई हजरत मीटिंग किए हैं कि कैसे मुसलमानों की तादाद को रोका जाए, कैसे मुसलमान जो इस कदर जोर से आगे बढ़ रहे हैं उनके तादाद पे कैसे पाबंदी लगा दी जाए। हजरत यहूदी हजरत मीटिंग किए हैं और एक रिवायत में ये मिलती है कि एक बयाबान में, एक मैदान में वो लोग इस मीटिंग को रचाने के लिए निकलते हैं और एक रिवायत में मिलती है कि उस मीटिंग में आने वाली तादाद का यानी आने वाले मजमे के तादाद एक रिवायत के मुताबिक 6 लाख का मजमा बताया जाता है और एक रिवायत के मुताबिक 7 लाख का मजमा बताया जाता है। आप अपनी निगाहों में सोचिए, तसव्वुर की दुनिया में सोचिए कि 6 लाख का मजमा या 7 लाख का मजमा कितना बड़ा मजमा होता है। ऐ लोगों, सारे यहूदी हजरात आ गए हैं, ईसाई हजरात आ गए हैं, उन ईसाई और यहूदी हजरात का बादशाह भी आया हुआ है, उनका मजहबी लीडर, वो लोग जिसे पोप कहते हैं, वो पोप भी आए हुए हैं और ये मीटिंग कर रहे हैं कैसे मुसलमानों को मिटाया जाए, कैसे मुसलमानों की तादाद को खत्म किया जाए। हजरात जैसे ही वो सारे हजरात आ गए हैं, पोप भी उसी स्टेज में बैठा हुआ है, ईसाई भी बैठे हुए हैं, उसी मीटिंग से, उसी 7 लाख के मजमे से एक बूढ़ा शख्स खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद ये कहता है कि बादशाह अगर इजाजत हो तुम अपनी बात रखें, अगर इजाजत हो तुम अपनी बात शुरू करें, अगर इजाजत हो तुम अपनी बात शुरू करें। हजरात बादशाह ने कहा कि हाँ बताइए राय क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, मुकम्मल इजाजत है कि आपकी राय क्या है। हजरात जैसे ही बादशाह ने उसको इजाजत दे दी है, हजरात उस बूढ़े शख्स ने यह कहा है कि आज के इस 7 लाख के मजमे में हम इसलिए तो भीड़ जमा किए हैं ताकि इस भीड़ में हम तय ये करें, हम अहद ये लें, हम प्लानिंग ये बनाएं कि
कैसे मुसलमानों की तादाद को रोका जाए, कैसे मुसलमानों के बढ़ती तादाद को रोका जाए। हजरात, लोगों ने कहा कि हाँ हाँ हम इसलिए तो आए हैं। वो बूढ़ा शख्स ये बोलता है कि अगर हम इस्लाम की तादाद को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी ये है कि आज इस मीटिंग में हम ये तय करें कि इस वक्त मुसलमानों के सिपह सालार, इस वक्त मुसलमानों के हाकिम जो हजरत खालिद इब्ने वलीद है, तो हमारी राय ये है, मेरा मशवरा ये है कि हजरत खालिद इब्ने वलीद का कत्ल करवा दो, हजरत खालिद इब्ने वलीद का मर्डर करवा दो। जैसे ही हजरत खालिद इब्ने वलीद का मर्डर करवा दोगे, इस्लाम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। हजरात, जैसे ही वो बूढ़ा शख्स ये बात बोल करके बैठ जाता है, अब वो बादशाह अपने मजहबी लीडर पोप को खड़ा करता है। यानी वो यहूदी हजरात और ईसाई हजरात अपने पोप की बड़ी इज्जत किया करते हैं, वो लोग उनकी हर बात माना करते हैं। जिस तरीके से हमारे अहले सुन्नत वल जमात में हम लोग एक मुफ्ती साहब की बड़ी इज्जत किया करते हैं, उनके फतवात को माना करते हैं, उसी तरीके से हजरात वो मजहबी लीडर पोप को खड़ा करता है और कहता है, पोप तुम तो बड़े फसीहुल बयान हो, पोप तुम तो बड़े मुकर्रिर हो, पोप तुम तो बड़े बिग स्पीकर हो, पोप तुम तो बहुत बड़े मुकर्रिर हो। पोप ये तो बताओ, अब ये शख्स जो कह रहा है कि अगर मुसलमानों की तादाद को रोका जाए तो मेरी राय ये है कि इस वक्त मुसलमानों के हाकिम हजरत खालिद इब्ने वलीद का मर्डर करवा दो, इस्लाम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ए पोप, अब तुम इसमें तबसरा करो, अब तुम इसमें हाशिया खींचो कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर हम ऐसा करते हैं तो अपने मकसद में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। अर्थात तारीख गवाह है, हिस्ट्री में ये बातें अब भी मौजूद हैं, चांद और सूरज की रोशनी गवाह है कि जैसे ही वो पोप खड़ा होता है, जो बहुत बड़ा मुकर्रिर था, जो बहुत बड़ा बिग स्पीकर था, खड़ा होने के बाद जैसे ही वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, ट्राई पे ट्राई करता है, ट्राई पे ट्राई करता है, कोशिश पे कोशिश करता है, लेकिन उसकी जबान कटने लगती है, उसके होंठ थर्राने लगते हैं, उसके जिस्म कांपने लगते हैं। बादशाह कहता है कि पोप क्या बात है, तुम तो कहते थे कि मैं बहुत बड़ा मुकर्रिर हूँ, पोप क्या बात है, तुम तो कहते थे कि मैं बहुत बड़ा बिग स्पीकर हूँ, लेकिन बात क्या है, ये 6 लाख के मजमे से डर गए हो, बात क्या है, ये 7 लाख के मजमे से डर गए हो, बात नहीं बन पा रही है, बोल नहीं पा रहे हो, इसकी वजह क्या है। तब पोप ने जवाब दिया था, नहीं बादशाह, मैं कल भी मुकर्रिर था, मैं आज भी मुकर्रिर हूँ, मैं कल भी बिग स्पीकर था, मैं आज भी बिग स्पीकर हूँ, मैं कल भी बोलता था, मैं आज भी बोलता हूँ। मैं डर इसलिए नहीं गया हूँ कि 6 लाख का मजमा मुझे डरा दिया है, मैं डर इसलिए नहीं गया हूँ कि 7 लाख का मजमा मुझे डरा दिया है, बल्कि मैं बोल तो सिर्फ इसलिए नहीं पा रहा हूँ कि इसी 7 लाख के मजमे के अंदर कोई न कोई एक नबी का सच्चा आशिक हजरत खालिद इब्ने वलीद बैठा हुआ है, उसी के हैबत और उसी के खौफ की वजह से मेरे ज़बान और मेरे दिल में काले लगे हुए हैं। 7 लाख के मजमे में अगर एक नबी का सच्चा आशिक हजरत खालिद इब्ने वलीद बैठ जाए तो यहूदी और ईसाई हजरात का मजहबी लीडर पोप नहीं बोल पाता है। लेकिन हम कैसे मुसलमान हैं, आज हमारी तादाद लाखों नहीं करोड़ों की है। मैं कहना यह चाहता हूं कि आज UNRC ला करके हमें हिंदुस्तान से दरबदर करने की बातें की जा रही है, उसकी वजह यह है कि हमने मुस्तफा जाने रहमत की जो असल सुन्नत की निशानी है, उसी सुन्नत को अपनी दाढ़ी को मुंडा करके जो नालियों में फेंकना शुरू कर दिया है, जिससे हमारी पहचान नजर में नहीं आती है कि हम उस तरफ वाले हैं या इस तरफ वाले हैं। मौलाना अली रजा रहबर साहब किबला, अगर हम स्टेशनों में जाते हैं तो हम ये देखने को तरस जाते हैं कि कोई मुस्लिम बंदा मिले और उससे हम अपने यानी सफर के दर्द को शेयर कर सके। लेकिन हजरात, जब नजरें घूमती है तो एक भी मुसलमान देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन क्यों इसलिए नहीं देखने को मिलते हैं कि उनके चेहरे से ये पता चलता है कि पता नहीं ये इधर वाला है या उधर वाला है। लेकिन जब कोई करीब आकर के कहता है अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो, तब हमें ये मालूम होता है कि ये भी हमारे मजहब के मानने वाले हैं। खुदा की कसम खा करके मैं कहता हूँ और चैलेंज के साथ मैं ये कहता हूँ कि अगर पूरे हिंदुस्तान के लोग सिर्फ नबी की सुन्नत दाढ़ी अपने चेहरे में सजाना शुरू कर दे तो कसम खुदा की किसी इंसान की मां ने इतनी दूध नहीं पिलाई है कि वो हिंदुस्तान से मुसलमानों को बाहर कर सके। ऐ लोगों, ये तो दुनिया में रहने का फायदा है, लेकिन अगर मुस्तफा
मुस्तफा की सुन्नत को सजा करके हमारी आंखें बंद हो जाएगी। फरिश्ते आएंगे तो फरिश्ते आएंगे, मुस्तफा कहेंगे छोड़ दो ये मेरा गुलाम सो रहा है, छोड़ दो मेरा ये नौकर सो रहा है, छोड़ दो मेरा आशिक सो रहा है। हज़रत मुनकर नकीर बोलेंगे आका सवाल तो कर लेने दे, आका सामना तो कर लेने दे। मुस्तफा कहेंगे तुम सवाल क्या करोगे, देखते नहीं हो इसने अपने चेहरे पे मेरी सुन्नत को सजा के आया है, देखते क्या हो सवाल क्या करोगे। हज़रत लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहना ये चाहता हूँ कि आज कौम मुस्लिम इस कदर बदतर हालात में चले गए हैं कि आज हमें अपने मजहब इस्लाम की हक़ानियत का परवाह नहीं है। आज अगर कुरान की अजमत पे हमला होता है हम होने देते हैं, तलाक पे हमला होता है हम होने देते हैं। हमें तो अपने खाने पीने से मतलब है, हमें तो अपनी जिंदगी से मतलब है, हमें तो अपनी फैमिली से मतलब है। हमें क्या मतलब है मजहब इस्लाम की हक़ानियत से? हम तो सिर्फ नाम के मुसलमान, किसी मौलवी साहब ने किसी इमाम साहब ने मेरे कान में आकर के अजान दे दी, उसी दिन से हम मुसलमान कहना शुरू कर दिए। लेकिन हम ये क्या जानते हैं कि हमें भी यानी कुरान के लिए मैदान अमल में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। याद रखो मेरे प्यारे, अगर आपके सोच की बेहुदा रफ्तार इसी तरीके से चलती रही तो कसम खुदा की वो दिन दूर नहीं है। अभी तो सिर्फ कुरान पे हमला हो रहा है, अभी तो सिर्फ कुरान की अजमत पे हमला हो रहा है, वो दिन दूर नहीं है। अगर आपके सोच की बेहुदा रफ्तार इसी तरीके से चलती रही तो आपके सामने आपके माओ बहनों की इज्जतें लूट ली जाएंगी, लेकिन आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि बुनियादी तौर से हमारी तादाद तो बढ़ रही है लेकिन हमारी तादाद इस कदर कमजोर है कि हम एक दूसरे को आंखें दिखाने के काबिल नहीं है। फिर हम ये कैसे दावा करते हैं कि हम मुस्तफा के मानने वाले हैं? एक रिवायत तो ये मिलती है और इस रिवायत के अंदर शक बताया जाता है, लेकिन हम मुस्तफा से कैसे प्यार करते हैं? हजरत ओवैसे करनी जिसके नाम से हम लोग फातिहा दिलाते हैं, हजरत ओवैसे करनी पूरी जिंदगी कभी मुस्तफा को देखे नहीं है। ऐ लोगों, मुस्तफा की जाहिरी जिंदगी में हजरत ओवैसे करनी करन के रहने वाले हैं। करन से मदीने शरीफ की दूरी लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर हम और आप होते और मुस्तफा के मानने वाले हैं तो कैसे कैसे नहीं आकर जा करके मुस्तफा के कदमों तले कुर्बान हो जाते। लेकिन वाह रे ओवैसे करनी, तेरे घर में बूढ़ी माँ है, उस बूढ़ी माँ की खिदमत का लिहाज रखते हुए हजरत ओवैसे करनी ने मुस्तफा की ज़ियारत करना छोड़ दिया। ऐ लोगों, उसी ओवैसे करनी के बारे में ये रिवायत बताई जाती है और ये शक के साथ भी बताया जाता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये रिवायत सच है तो आप याद कीजिए कि हजरत ओवैसे करनी को जब किसी ने ये बताया कि ओवैस तुम मुस्तफा से प्यार करते हो, ओवैस तुम मुस्तफा के नौकर हो, ओवैस तुम मुस्तफा के आशिक हो, हजरत ओवैस फरमाते हैं हमारे दिलों की धड़कन मुस्तफा के नाम। हजरत ओवैस फरमाते हैं हमारी जिंदगी मुस्तफा के नाम। हजरत ओवैस फरमाते हैं मेरा जीना मुस्तफा के नाम। हजरत ओवैस को वो आदमी बोलता है कि ए ओवैस, हमने ये सुना है कि आज जंगे उहद में तेरे मुस्तफा जाने रहमत के एक दांत शहीद हो गए हैं, एक दांत को किसी बदबख्त ने तोड़ डाला है। ऐ लोगों, जैसे ही हजरत ओवैसे करनी ये सुनते हैं पत्थर उठाते हैं और पत्थर के जरिए अपने मुंह के सारे दांतों को एक एक करके तोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर अपनी माँ के पास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद माँ से बोलते हैं कि अम्मी जान, मैंने ये सुना है कि मेरे मुस्तफा के एक दांत तोड़ दिए गए हैं, मेरे मुस्तफा के एक दांत शहीद हो गए हैं। ए अम्मी, मुझे तो ये खबर नहीं है कि मुस्तफा के दाएं वाले दांत शहीद हुए हैं या बाएं वाले दांत शहीद हुए हैं, ऊपर वाले दांत शहीद हुए हैं या नीचे वाले दांत शहीद हुए हैं। ए अम्मी, इसी वजह से मैंने मुस्तफा की मोहब्बत में अपने आप को जकड़ करके अपने मुंह की सारे दांतों को तोड़ दिया है। तब उसकी माँ हजरत ओवैसे करनी की माँ बोलती है कि बेटा ओवैस, जब महबूब ऐसा होता है तो मोहब्बत भी ऐसी होनी चाहिए। बेटा ओवैस, जब महबूब ऐसा होता है तो मोहब्बत भी ऐसी होनी चाहिए। लेकिन हम किस कदर मुस्तफा से प्यार करते हैं, हम कैसे मुस्तफा पे जान छिड़कते हैं। ऐ लोगों, मेरी तकरीर इस वक्त 1.5 घंटा की भी हो सकती है, लेकिन हमारे साथ मजबूरी ये है कि मुझे गोपालगंज के सफर के लिए निकलना है। 12-12:30 बजे के करीब में यहाँ से बस है, मुझे बस का भी सफर करना है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, मैंने कुरान की आयत का एक टुकड़ा तिलावत किया है। अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी
रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूने पर है। अगर तुम दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो हुजूर के उसवे हसना पे चलना शुरू कर दो। इसी वजह से हुजूर के उसवे हसना पे चल करके हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कभी कुरान पे अगर हमला होगा या तलाक के नाम पे अगर हमला होगा तो हम लोग सिर्फ अपने घरों में हाथे खड़ा करके नारा नहीं लगाना जानते हैं, बल्कि सड़क और रोड में आकर के अपनी गर्दनों को कटाना, अपनी गर्दनों को कटाना, अपने बच्चों को कुर्बान करना तो जानते हैं, लेकिन कुरान पर एक नुक्ते की भी कमी आना नहीं देखना चाहते हैं। हज़रात, इसलिए मैं आपसे बताना यह चाहता हूं कि कुरान के नाम पे अपने आप को कुर्बान करने वाला मुसलमान बनाइए। सारे लोगों से मैं गुजारिश करूंगा। और आज इस जलसे तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस यानी तहफ़्फ़ुज़ कुरान के लिए यहाँ के लोगों ने इस जलसे का इनेकाद किया है। मैं आपसे बताना यह चाहता हूँ कि इन्हीं जलसों के जरिए हम हुकूमत तक पैगाम पहुंचाते हैं। इन्हीं जलसों के जरिए वसीम रज़वी के कान में हम शीशा तोड़ते हैं। इसी जलसे के जरिए आज पूरी दुनिया में मुसलमानों का बोलबाला है। ऐ लोगों, ये जलसे बड़ी मेहनत के साथ होते हैं, लेकिन मैं तमामी लोगों से ये कहता हूँ, क्या आप अगर तैयार होते हैं, कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। आज कुरान पे हमला हो रहा है, आज अगर कुरान पे हमला होते हुए हम देख रहे हैं, फिर भी अगर हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं है, फिर भी हमारे जिंदगी में इनकलाब नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। कसम खुदा की, ऐसी जिंदगी से हमें डूब करके मर जाना चाहिए, उससे बेहतर रहेगा। इसलिए सब लोग खड़े हो जाएं, और सब लोग नहीं बल्कि मैं 5 ऐसे नौजवान को यहाँ बुलाना चाहता हूँ जो अजमत कुरान के नाम पे, तहफ़्फ़ुज़ कुरान के नाम पे सिर्फ 1100 रुपए हमें दे दे। पंजतने पाक के नाम पे सिर्फ 5 आदमी को मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ जो अजमत कुरान के नाम पे, तहफ़्फ़ुज़ कुरान के नाम पे सिर्फ 1100 रुपए हमें ये दे दे। कसम खुदा की, मौलाना अली रज़ा रहबर साहब को मिला, हमें ये यकीन है, हमें ये यकीन है, हमें ये उम्मीद है कि कुरान से जो मोहब्बत करता है वो जरूर आएगा, जो मुस्तफा पे जान देने के पसंद करता है वो जरूर आएगा। ऐ लोगों, कुरान के अजमत के लिए ये 1100 की क्या बात है, हम तो अपने घर को लुटाना चाहते हैं। मैंने 5 आदमी का मुतालबा किया है पंजतने पाक के नाम से, ली खमसतिन उठफी बिहा